relationships with Gen Z, I have, I'm trying to navigate ke kya chal raha hai, because there's this girl having 10 different guys to talk to. There is this one guy who loves traveling. There is this one guy who is very introvert. There is this one guy who does gymming. Because of such availability of choices, you are very impatient. अगर हम किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट होते हैं जो हमें लिमिटेड अटेंशन दे जाए, लाइक ही इज़ देयर और शी इज़ देयर एंड गिविंग 100% अटेंशन 24 घंटे बात हो रही है, एंड आफ्टर 2 days दे डिसअपियर. सो द ऑपोजिट partner, whether it's a girl or a boy, they wait. It's an 8-year-old relationship. आदत हो गई है उस इंसान की. But I'm like, is it really love now? You're not getting trust. You're not getting respect. What is it that you're getting? You cannot see a guy crying. So therein वो therapy लेते हुए जाना तो is like मर्द के like weak mentality. कितना weak है ये इंसान जो therapy के लिए जा रहा है, which is very sad. Procrastination is equivalent to being lazy, or how do you define it? I'll describe procrastination as Do you think therapy actually helps? जो solutions लेने के लिए जा रहा है, जो सिर्फ ये सोच रहा है कि अब ये therapist मेरी life बदल देगा, मुझे fix कर देगा, that is not going to happen. Hi Swasti, welcome to another episode of Arise Talks. I'm so thrilled to have you here. तो आप सबने डॉक्टर जग के बारे में सुना होगा in Dear Zindagi. Today we have Miss Dr. Jag. She's a Gen Z therapist and most of you already know her through her page. So tell me something about yourself. Thank you so much, and thank you so much for inviting me here. So my name is Swasti. I'm a counseling psychologist, and I also founded Gen Z Therapist, which is a edtech and a mental health platform. And I also have an experience working with Masters Union. It's a corporate B school in Gurgaon, and Physics Wala, which is I think an edtech, which mostly people know. Everybody knows. Yeah. Yeah. All right. So how did you develop your interest in this field? Psychology. Gladly I had psychology in class 11th and 12th. Okay, and I think हम सब ने जिसने 11th 12th की NCERT पढ़ी है psychology की, we all fall in love with psychology as a subject. But there is a very personal story behind this. There was somebody in my family who got diagnosed with depression, and none of us had any clue what is going on. And because we used to take her to physicians, all sort of doctors, even neurosurgeons, but we couldn't, got to know कि exactly क्या है ये depression. I was very small. I think back then I was in 7th and 8th. And then one of the psychologists and one of the psychiatrists at AIMS gave us the clarity कि depression क्या है. And therein we couldn't find the right psychiatrist and psychologist, and it took a lot of time for that family member, for me, for her to heal. So therein I decided कि India में there is a serious lack of medical and mental health professionals, especially good psychologists, and I really wanted to become a psychologist जो इस बारे में ज़्यादा बात कर पाए and एक अच्छी mental health care दे पाए. Oh, that's fantastic. Very inspirational. So, Swasti, आपने बोला कि जब आपने डिप्रेशन के बारे में सुना था आपको कुछ नहीं पता था, बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट टुडे स्टेट, जेनजी ने डिप्रेशन वर्ड को इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हर दूसरे बच्चे को डिप्रेशन है, एंजाइटी इश्यूज हैं या ट्रॉमाज हैं. दीज आर द वर्ड्स दैट हैव बीन कॉमनली यूज्ड एंड समटाइम्स मिसयूज्ड एज वेल. क्योंकि वो एक्सक्यूज बन जाता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए आई एम एक्टिंग दिस वे, आई एम एंशियस दैट्स व्हाई आई एम एक्टिंग दिस वे. सो आई वांट यू टू एड्रेस कि डिप्रेशन का मीनिंग होता क्या है, क्योंकि अगर किसी को कैंसर है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो हम इजीली बता देते हैं कोई डॉक्टर के पास जाके कि ये इसको ये प्रॉब्लम है. बट इफ यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन इज वन वेरी कॉमन वर्ड. तो डिप्रेशन आप कैसे एक्सप्लेन करोगे एक लेमैन को, व्हाट इज इट? ओके, सो जैसे आपने बोला फॉर कैंसर ऑल्सो व्हाट हैपन इज कि कुछ सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं एंड किसी को ऐसे नहीं पता लग जाता सुबह उठ के कि आज मुझे कैंसर है. दे ऑल्सो रीच आउट to मे बी अ प्रोफेशनल डॉक्टर एंड देन दे गेट सर्टेन टेस्ट डन एंड देन दे गिव अ डायग्नोसिस कि अच्छा आपको ये है. प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ लाइक वेयर यू स्टार्टेड कि आजकल हर बच्चे को डिप्रेशन है एंड पीपल लूजली यूजिंग द टर्म्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ट्रॉमा is where the problem started. And I think mental health की conversation started post COVID. COVID में Sushant Singh died by suicide, and therein the awareness about mental health started, which was very good. Initially, it was very good. And also, I'd like to mention Deepika Padukone. She came out that she has
diagnosed with severe depression. Exactly, she was diagnosed, right? She went to a professional and उसको प्रॉपर डायग्नोसिस हुआ. बट प्रॉब्लम क्या हुआ लॉकडाउन में, बिकॉज सबके पास फोन है, सबके पास इंस्टाग्राम है, तो सब लोग खुद ही थेरेपिस्ट बन गए. आई स्टार्टेड टू सी दीज रील्स ऑफ 5 signs you have depression, हाँ. 5 signs you have anxiety, and people are self diagnosis. उन्होंने वो रील देखी एंड देन स्टूडेंट्स आर सेइंग मी, मैम मुझे ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे डिप्रेशन है. एंड अब मानोगे नहीं, देर आर दीज क्विजेज, पास्ट योर Test your वही था. सो प्रॉब्लम मैं बताती हूँ क्या है. अगर आपको कैंसर जैसा कुछ है, कैंसर छोड़ो, फीवर भी है ना, तो पीपल आर रेडी टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट टेस्टेड कि कोविड है या नहीं, के लिए भी टेस्ट के लिए जाएंगे. मेंटल हेल्थ क्योंकि सीरियसली नहीं लिया जाता, तो उसके लिए लगता है कि अगर रील्स की भी कोई लाइफ कोच या कोई भी रैंडम इन्फ्लुएंसर भी बता रही है, तो उसको सीरियसली ले लेंगे कि हाँ, हमको डिप्रेशन है. अगर मैं अब एक्चुअल में आपको बताऊँ, तो हम लोगों के जैसे प्रॉपर डायग्नोसिस होते हैं. सो इन साइकोलॉजी वी हैव DSM एंड ICD, व्हिच आर डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल्स, जहाँ पर प्रॉपर क्लासिफिकेशंस दिया हुआ है दैट दीज आर द सर्टेन सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन. एंड फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉमन सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ कि भूख नहीं लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, नींद नहीं आती, ज़्यादा नींद आती है, किसी से मिलने का मन नहीं होता. द आइसोलेशन इज द मेजर फैक्टर विच कम्स विद डिप्रेशन, कि अकेले रहने का मन करता है. वर्थलेसनेस एंड होपलेसनेस, कोई होप नहीं लगती, कोई वर्थ नहीं लगती. जो भी जेनजी सुन रहा होगा वो कहेगा ये सब मुझे है. एग्जैक्टली. अब मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे अपनी वाला में आता क्या है, इट शुड बी कंटिन्यूअली हैपनिंग फॉर 2+ more weeks. अगर आपको ये सिम्टम्स 2 हफ्तों से ज्यादा तक कंटिन्यू हो रहा है, तब भी आप ये मत बोलो आपको डिप्रेशन है. रीच आउट टू अ प्रोफेशनल. आप उसका, हम लोगों के उसमें देर आर डिफरेंट प्रोफेशनल्स. वी हैव साइकाइट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड देन कम्स मी, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. हम सबके डिफरेंट प्रोफेशनल्स होते हैं. यू कैन रीच आउट टू एनीवन. जो भी अच्छा प्रोफेशन होगा वो आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करेगा कि आपको जाना किसके पास है. आपका एक असेसमेंट होगा, उस असेसमेंट के बाद केस हिस्ट्री होती है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, फिर आपको डायग्नोसिस मिलता है कि आपको डिप्रेशन है भी या नहीं. So it is a clinically diagnosis, not a random thing. It is a clinical diagnosis. It is science. I really want to come here and debunk this myth कि प्रॉब्लम यही है. अगर मैं ऐसे बात करना शुरू कर दूँ ना, दैट आपके सेरोटोनिन, डोपामाइन लेवल्स कम होते हैं, देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट्स शट डाउन, द कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीजेस, द नॉरएपिनेफ्राइन एंड एपिनेफ्राइन इंक्रीजेस, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मी सीरियसली. दे लाइक ये तो कुछ सीरियस लगा. हाँ. अब मैं उन्हें इतनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि क्या आप सोशली विड्रॉड हो, इमोशनल हो, तब उन्हें लगता है कि ये तो क्या, दिस इज ऑप्शनल. पीपल थिंक डिप्रेशन इज कि हो सकता है या नहीं हो सकता. आई रियली वॉन्ट टू कम हियर एंड टेल कि आपके हाथ में नहीं है. देर इज एक्चुअली न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट आर इन्वॉल्व. योर न्यूरो ट्रांसमीटर्स गेट अफेक्टेड. आपने शायद ये भी सुना होगा, ADHD अभी काफी कूल डिसऑर्डर बन गया है. आई पर्सनली वांट टू शेयर. Everybody say, I mean, there are people who are again using ADHD as an excuse that Yeah. they're like, I think Alia but recently. And I really want to tell you that I have been diagnosed with ADHD. So I am the right person to tell you कि ये कोई creative fun disorder नहीं है. एक ADHD person की एक neurodevelopmental disorder है. There is this neurons that have been, हमारे neurodevelopmental disorder है, where we are into 2x का speed. If you'll notice, I'm speaking very quickly and very fast. But mostly ADHD students or people who have been diagnosed, I mean, I have worked with an ADHD, but they are usually very quiet. They will not, like, There is a difference. pay attention. Yes. Quiet नहीं होंगे. That is also, there is almost one. They are like very distracted कि Yeah. इधर ध्यान जा रहा है, उधर भी जा रहा है, वो भी करना है, ये भी करना है. Because I mean, I also deal This with is a this is a perfect example. But जो quiet का example दे रहे हो, that can be an autism. Okay, yeah. So there's a different kind of disorders that come into neurodivergence, हम इसको बोलते हैं. So coming back to your question, अगर आपको लग रहा है आपको डिप्रेशन है, हम नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रहे हो या टेंशन सीकिंग कर रहे हो. We're not saying that, but at least please reach out to a professional. खुद से, I have also seen people start taking medicines अपने आप से, Antidepressants and all of that. and they don't want to go for therapy. They really don't want to go for therapy. तो therapy के अलावा उनको कुछ भी दे दो, they're ready to do that. But I am saying that अगर आपको लग रहा है, which can be true, but please go to a psychologist or a psychiatrist and get yourself diagnosed. Do you think therapy actually helps?
मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम जो शुरू हो गई है इंस्टाग्राम पे भी कि लोगों ने थेरेपी को भी सेल करना स्टार्ट कर दिया है। गो फॉर थेरेपी, गो फॉर थेरेपी। इट्स बीइंग वेरी नॉर्मलाइज्ड। इट्स गुड। नॉर्मलाइज़ करना अलग बात है, ग्लैमराइज़ करना अलग बात है। हाँ, तो आई डोंट वांट टू कम हियर एंड से एवरीवन शुड गो फॉर थेरेपी। दैट्स ट्रू, एवरीवन शुड गो फॉर थेरेपी, बट इट्स आल्सो नॉट समथिंग दैट वी शुड टेक इट वेरी फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है थेरेपी बात करना है। वहीं मुझे बोलना थेरेपी बात करना नहीं है। जो आपका साइकोलॉजिस्ट है, दे विल बी यूजिंग वेरी साइंटिफिक procedures and techniques to know what's the issue, to ask the right kind of questions, and you yourself will get to reach and get there. थेरेपिस्ट आपको कभी नहीं, लोगों को लगता है थेरेपिस्ट के पास जाएंगे और हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। प्लीज अपने थेरेपिस्ट के पास सॉल्यूशंस के लिए मत जाओ, वो नहीं देने वाली। एंड आई थिंक तभी लोग इरिटेट हो जाते हैं कि थेरेपिस्ट तो बस बैठ के बट नॉडिंग एंड दे आर नॉट आंसरिंग, बिकॉज थेरेपी टेक्स टाइम, थेरेपी नीड्स पेशेंस। सो उसके लिए भी देखना पड़ रहा है कि आपको थेरेपी जाना क्यों है। जस्ट बिकॉज यू सॉ द रील एंड यू फाउंड इट कूल, डोंट गो बिकॉज यू फाउंड इट कूल। उसके लिए भी देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, एंड I mean, you can always go and try and talk to a professional, but it is genuinely not talking and giving solutions. Coming back to your question, does it really help? It will only help if you want to get help. दिस इज अ थिंग कि जो सॉल्यूशंस लेने के लिए जा रहा है, जो सिर्फ ये सोच रहा है कि अब ये थेरेपिस्ट मेरी लाइफ बदल देगा, मुझे फिक्स कर देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू नीड टू गिव इट टाइम, यू नीड टू गिव इट पेशेंस। एंड देन आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मेरे कुछ केसेस थे where I had some clients with sexual assault history. They were feeling very guilty. They were actually, उनके साथ अगर बचपन में sexual assault हुआ था, so they were feeling guilty they were carrying the guilt that they did not do anything. So through therapy, they were able to come out of that victim cycle. They were come out of that guilt. So grief के cases में, self harm के cases में, I have personally also, when I worked with physics wala, or I usually work with children. You don't know how many, even a ninth class student might feel suicidal, or they are doing silently self harm. उस केस में थेरेपिस्ट का रोल आने से उनको काफ़ी साइको एजुकेशन मिलती है। हम उनको सेल्फ हार्म एंड इवन सुसाइडल आइडिएशन से बचा सकते हैं। सो आई पर्सनली वुड से इट हेल्प्स ओनली इफ यू आर पेशेंट इनफ टू वॉलंटरीली ऑल्सो। जो आपका थेरेपिस्ट बोल रहा है, इतने बार होता है, मेरे कुछ क्लाइंट्स को मैं होमवर्क देती हूँ, आई आस्क देम टू डू सर्टेन थिंग्स, दे डोंट टेक इट सीरियसली, दे आर लाइक इससे क्या होगा, ये क्यों दे रहे हो। सो इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई मीन द सैड पार्ट इज, लोग जिमिंग को भी तो टाइम देते हैं। दे विल पे ट्रेनर्स, दे विल पे न्यूट्रिशनिस्ट, बट मेंटल हेल्थ पे आते दे लाइक एक दिन में थेरेपिस्ट विल फिक्स देम, देयरइन इट वोंट हेल्प यू। got your point. But I think if somebody is going with a very rigid mindset, then also they are like कि क्या ही कर लेगा ना। तभी सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। वो have to be very patient. I mean, how will he convince our dads कि पापा आप थेरेपी लो? Exactly. How would you convince your uncle कि आपको भाई एंगर इश्यूज, आप थेरेपी लो? वो तो एकदम ही इस टॉपिक, और इस It's still a taboo topic. I think it's still a taboo. Like people are not willingly. If somebody is going to a physician, they'll be like, हाँ डॉक्टर को मिलकर आए. But if you're going to a psychiatrist, it's like पागल वागल हो गया है क्या? पागलों के डॉक्टर। मैं तो अपने डॉ- पूरे खानदान में पागलों के डॉक्टर की तरह फेमस हूँ। आई हैव जस्ट एक्सेप्टेड कि हाँ भाई हो। सो वी आर, आई एम नॉट There एबल are टू, taboos. या देयर आर डेफिनेटली टैबूज। And let's talk about the relationship culture and how it's affecting the mental health and how people have started like being okay with the culture that we have today. Like it's not only about relationship related भी आपके पास बहुत issues आते होंगे. या And we can also talk about trauma bonding. Like ओके, या you have similar background or similar past experiences and then you bond over that. And how is it healthy? ओके। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि अब रिलेशनशिप्स विद जेन ज़ी, आई हैव आई एम ट्राइंग टू नेविगेट कि क्या चल रहा है, बिकॉज़ Everybody is. या सो In our own generation, I think we have started to feel the generational gap. आई स्वेयर, Yesterday only I saw a reel where they mentioned breadcrumbing, benching. लव बॉम्बिंग,
All of that, like, what, like, Yeah. what is it? Yeah. So even my clients come with, मैम मेरे साथ ब्रेड क्रमिंग हो रही है, एंड I'm like फटाफट गूगल करती हूँ ब्रेड क्रमिंग है होता क्या है, एंड nobody is ready to give commitments. I am like कभी कभी अपने क्लाइंट से पूछती हूँ is he your boyfriend? So she's like no, he's not my boyfriend ma'am, it's very complicated, It's situation. it's situationship. So I think the entire relationship culture in general has been very different nowadays. I think it's very toxic also. Like, one day you're with one person, the next day you're liking someone else. There's a lot of commitment issues. A lot of commitment issues, but we'll also have to understand why is it happening. We have been given so many options. So when there's this girl having 10 different guys to talk to, there is this one guy who loves traveling, there is this one guy who is very introvert, there is this one guy who does gymming. So she's, because of such availability of choices, you are very impatient. Our generation is very impatient. They're not ready to wait through the process of love, trust. It's like changing. But ठीक है, let's just talk about people who are in relationship and not exactly in a situationship. अब मान लेते हैं कोई एक ऐसी कपल है जो रिलेशनशिप में है। अब उनके साथ दिक्कत क्या आ रही है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देयर इज सो मच प्रेशर टू शो लव। Exactly. आई मीन देयर इज सो मच कंपैरिजन। अगर बंदी को फूल दे दिया तो ट्रिप पे नहीं लेके गए, ट्रिप पे ले गए तो फैंसी डिनर नहीं हुआ, फैंसी डिनर हो भी गया, Proposal का पिक्चर्स नहीं लिए, प्रपोजल ले ली, पिक्चर्स क्यों नहीं ली? आई मीन व्हाई डोंट हैव अ पिक्चर टू पोस्ट? So I think more than love, the pressure to show love has increased. And problem बेचारे लड़कों के साथ आती है because they're anyway very private in their life. So girl is showing off and showing her relationship, and boys are not posting pictures. So therein the girl is like कि मेरा बंदा मेरे साथ pictures नहीं डालता है. So I think social media की वजह से comparisons, insecurities, jealousy and pressure to show love has increased. Now coming to trauma bonding. So we need to understand कि trauma bonding जिनको नहीं पता वो होता क्या है, is basically you're in a very healthy relationship initially in the honeymoon period. Then what happened is suddenly you've seen your boyfriend in a lot of anger burst, and you're like कि इसका ये अभी हुआ है, he's not like that. You'll start giving him chances, and I'll just not use just one gender. You'll start to give your boyfriend or girlfriend chances. Then the anger gets sometimes converted into throwing things. We've seen this movie, जिस पे book भी है, It Ends With Us. Yeah. So that I It see. Ends With Us is a perfect example if you want to watch the movie or read the book Hmm. of knowing how trauma bonding exists. It starts with love bombing. What's that? कि आपको बहुत ज़्यादा extreme love मिला, then there is like आपका फिर जो भी रिलेशनशिप का पार्टनर है वो आपको एक्सट्रीम एंगर दिखा रहा है, फिर वो आपको एक्सट्रीम लव दे रहा है, फिर एंगर दिखा रहा है. सो योर रिलेशनशिप इज गोइंग अप्स एंड डाउन्स. कोई अगर ट्रॉमा बॉन्डिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेबल नहीं है, इन द सेंस ना वो बहुत ही अच्छी चल रही है, ना वो बहुत ही बुरी चल रही है टू द लेवल कि आप छोड़ दो इंसान को. तो ट्रॉमा बॉन्डिंग के साथ प्रॉब्लम होती है होप. Hope he will change, hope she will change, things will go better, and therein you get attached to the highs and lows. हम उसको कहते हैं हमारा nervous system addict हो जाता है of The dopamine that the dopamine that you're getting because yesterday only I was reading this, that there was this one discussion, like panel discussion, and they were talking that when we get, like, even if it's for the boys and the girls, for both, कि अगर हम किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट होते हैं जो हमें लिमिटेड अटेंशन दे जाए, लाइक 2 दिन के लिए वो बिल्कुल है, like he's there or she's there and giving 100% attention, 24 घंटे बात हो रही है, and after 2 days they disappear. So the opposite partner, whether it's a girl or a boy, they wait कि वो कब text करेगा, कब message करेगा. and you will know It's not love. It's actually the chase or the thrill that actually the dopamine releases. I also realize जो हमारे लिए बहुत readily available है ना, we would never go to that person. जो हमको challenge कर रहा है ना, we would like that कि Yeah. ये तो मिल रहा है easily. No, ये हमको challenge कर रहा है. But And that's the problem with this generation. Like, not we, but I think everybody, they like the chase, the thrill, that yeah, we've forgotten the game. बट ट्रॉमा बॉन्डिंग का एक सीरियस इशू जो बहुत ज़्यादा जेंजी नहीं समझ पाते या फिर जो आजकल कवर नहीं होता है इज चाइल्डहुड. ट्रॉमा बॉन्डिंग इसलिए भी होता है इन द केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूजिव रिलेशनशिप इज इफ यू हैव सीन दैट इन योर फैमिली यू विल ट्राई टू अवॉइड इट, बट अनफॉर्चुनेटली यू विल एंड अप इन इट. देयर इज दिस थिंग दैट यू समहाउ बिकॉज यू हैव सीन दैट इन योर चाइल्डहुड, वो आपके लिए नॉर्मलाइज हो गया है.
अगर आपने अपने घर पे किसी को भी डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए देखा है, इट गॉट वेरी नॉर्मलाइज्ड फॉर यू. सो देयर आर हाई चांसेस सच पीपल will eventually be attracting that negative sort of a person who might end up doing the same thing that they were running off. So the movie that you mentioned, same domestic violence used to happen with the protagonist's mom. Yes. And in a similar way, she was initially being ignorant that this is what's been happening. तो इमोशनल डिपेंडेंसी इज द प्रॉब्लम. एक हैबिट हो जाती है ना, लाइक क्यों लोग 8 साल के रिलेशनशिप्स नहीं छोड़ पाते. मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैम इट्स एन 8 year old रिलेशनशिप, आदत हो गई है उस इंसान की. बट आई एम लाइक, इज इट रियली लव नाउ? यू आर नॉट गेटिंग ट्रस्ट, यू आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट. वॉट इज इट दैट यू आर गेटिंग? इट इज जस्ट द हैबिट and the emotional dependency that you've made on that person so far. So, Swasti, पहले मुझे ये बताओ, डियर जिंदगी, मैंने इंट्रो में बोला दैट वी हैव मिस डॉक्टर जगहेड. Yeah. डियर जिंदगी में उन्होंने काफी ग्लैमराइज तरीके से थेरेपी को दिखाया. बीचेस पे थेरेपी हो रही है, एवरीबॉडी वांटेड टू रन टू डॉक्टर जगह. Yeah. सो डू यू थिंक इट्स रेलेवेंट? No. The first chapter of becoming a psychologist was ethics, where we have to tell and learn कि कॉन्फिडेंशियलिटी सबको पता है कि थेरेपी में जो बात बताओ वो वहीं रहती है. बट एक पार्ट जो मिस कर देते हैं वो होता है इंटेग्रिटी, विच इज योर थेरेपिस्ट इज नॉट योर फ्रेंड, सिस्टर, लवर. दे कांट बी इट. सो आई थिंक डॉक्टर जग वाले केस में भी देर वॉज दिस टर्म विच इज ट्रांसफरेंस. उसमें क्या हुआ था दैट इन द एंड आलिया भट्ट स्टार्टेड टू लाइक Dr. Jug in a different way. So you remember the hug. You firstly, this sort of physical proximity also doesn't happen in sessions. आपके therapy sessions पक्का से साइकिल, बीचेस में, कैफेज में नहीं होने वाले. It's going to be very professional. We sign a contract. We tell them the ethics. तो वो बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई थी उसमें. But I don't like when people, say such bad things about डियर जिंदगी. And I'm like, एनिमल और कबीर सिंह के टाइम पे तो इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं हुई थी व्हेन इट कम्स टू डियर जिंदगी, जहाँ पे फाइनली, आई मीन दिस वाज द वेरी फर्स्ट मूवी जहाँ थेरेपिस्ट दिखाया है. आई मीन वेरी फनीली हमको मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसे डॉक्टर्स दिखाए हैं. देन एक अपरिचित थी, मंजोलिका थी, भूल भुलैया में अक्षय कुमार वाज शोन एज अ साइकियाट्रिस्ट. साइकाइट्रिस्ट. Yeah, that was also such depiction of psychiatrist. हम लोग नहीं पहनते यार, ऐसे गेटअप नहीं लेते हैं हम लोग. बट आई फील उसमें जिस तरीके से जो कॉन्वर्सेशनल या जिस मेटाफर से, इफ यू रियलाइज, शाहरुख खान नेवर गेव आंसर टू आलिया भट्ट. ही नेवर. ही यूज्ड टू गिव हर रिडल्स. ही यूज्ड टू टेल दिस चेयर का एग्जांपल एंड शी यूज्ड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट अपने आप. द एग्जांपल ऑफ आप कभी भी मुश्किल रास्ता क्यों चुनना है, आसान चूज कर सकते हो. शी अपने आप अंडरस्टूड द पॉइंट. सो आई वुड नेवर से दैट whatever the directors did was wrong. उन्होंने अपने साइड से, obviously if they're making a movie they'll add on the masala in it. Of course. It's a therapist job. It is our job as a psychologist to psycho-educate our client. हमारे ना थेरेपी में एक डिस्कवरी कॉल होती है. मान लेते हैं कि इफ ये पॉडकास्ट को देख रहा है and they liked me and they want to book a session with me, so they are like कि अब इनके साथ बात, हमें सेशन बुक करना है. हाँ. So I would never be saying कि आपसे मुझे इस पॉडकास्ट के बेस पे जज करो. Okay, like only my 2% of personality has been, and I mean therapist वाली साइड तो मेरी यहाँ पे लोग शायद बेयर मिनिमम ही देख पाएंगे. तो डिस्कवरी कॉल में हम उनको एथिक्स बताएंगे, रूल्स बताएंगे, थेरेपी होती क्या है ये बताएंगे, एंड देन दे विल मेक अ डिसीजन कि उनको लेनी भी है या नहीं. आई मीन आई डोंट वांट देम टू पे देयर 1 hour का एंड दे आर लाइक ये थी थेरेपी. ये मेरे साथ हुआ है. इनिशियली जब आई स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया एंड लाइक बैठ गए कि मैम अब बताओ सोल्यूशन. एंड आई एम लाइक सर दिस इज नॉट हाउ इट गोज. एंड दे वर लाइक मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, ये थी थेरेपी. सो उसके लिए आई वाज लाइक कि आई शुड ब्रेक इट. तो हम इसको साइको एजुकेशन कहते हैं, विच अगर आप ऐसी मूवीज देख के आपको ग्लैमराइज हो भी जाता है कुछ, तो एज अ थेरेपिस्ट विल साइको एजुकेट आवर क्लाइंट्स. ओके. और अगर डियर जिंदगी में आलिया भट्ट की जगह कोई मेल प्रोटैगनिस्ट होता, तो क्या ये मूवी उतनी वेल परसीव होती? आई थिंक वो जो भी मेल प्रोटैगनिस्ट होता है उसपे काफ़ी हेट कमेंट्स आ जाते. आई एम वेरी सैडली, आई एम नॉट प्राउड इन सेइंग दैट, बट द मूवी वुड हैव नॉट डन दैट गुड बिकॉज पीपल वुड हैव वेरी हार्ड टाइम एक्सेप्टिंग इट. You remember Manoj Bajpayee going to a therapy session in Family Man? Yes.
So The they clip is that like it's very viral. him Like abusing. ये quotes तो मैं Yeah. Google से बोल सी वहाँ पे तो थेरेपिस्ट भी बहुत ही फालतू दिखाया था। हम नहीं बोलेंगे बॉलीवुड कोट्स, कुछ भी हम गूगल से चिप के नहीं बोलेंगे। वी साइंटिफिकली ही बात होगी। बट मनोज बाजपेयी अब्यूजिंग द थेरेपिस्ट गॉट सो कूल एंड men were very proud of him doing that. People were supporting Manoj Bajpayee for doing that. So therein men का concept is he's the breadwinner of the family. He needs to earn. He needs to take care of his mother or sister, God's masculine macho guy. macho guy. He cannot cry. You cannot see a guy crying. So therein वो थेरेपी लेते हुए जाना तो इज लाइक मर्द के लाइक वीक मेंटालिटी, कितना वीक है ये इंसान के जो थेरेपी के लिए जा रहा है, which is very sad. We're actually in the men's health awareness month, and there have been very good conversations. There is Arjun. He is a person who talks about men's mental health. And अगर कोई भी गाय है, प्लीज फॉलो हिज पेज, बिकॉज वो हाईलाइट करता है, ही एक्चुअली गिव्स वेरी वैलिड पॉइंटर्स कि एक लड़का अपनी बात क्यों नहीं बताता, बिकॉज बचपन से ही उसको बोला गया है कि चुप रहे, रोना नहीं है, उसकी कंडीशनिंग वैसी हुई है। अब आप एक फ्रेंड्स ग्रुप में रहोगे, अगर एक लड़के का ब्रेकअप होगा तो वो लोग क्या करेंगे, दिल गो टू पार्टी चिलिंग एंड दिल जस्ट इग्नोर द टॉपिक ऑल टुगेदर। बॉयज इन जनरल आर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल एंड गर्ल्स होती हैं थोड़ी एंग्शियस, तो बॉयज लाइक टू अवॉइड एंड सप्रेस द थिंग्स। They don't express. Girls are the opposite. Yeah, and I don't think we should force men to express. Men in the right spaces do express. When they get the right space, कभी कभी जब उनका खुद से बात करने का मन करता है वो करते हैं। You can't force your men to बात करो, रो, आजकल मैं कैंपेन्स देख रही हूँ, they're like men it's okay to cry. I mean, it's not a really good way to. And suddenly all of a sudden एक दिन उठ के वो चेंज नहीं कर सकते ना। Exactly. अब से मैं मैं रोऊंगा। मैं रोऊंगा, हाँ। बताऊंगा, मैं ज्यादा दिखाऊंगा। Like they can't do that. Yes, but the need of the understand is to stop making guys such, उतना पेडेस्टल पे या उतना प्रेशर डालना हमें बंद करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू गिव देम राइट टाइम एंड स्पेस टू टॉक। आई थिंक दे विल टॉक इफ दे विल गेट द राइट स्पेस। उनको कभी वो इमोशनल, यू विल ऑलवेज सी फीमेल थेरेपिस्ट ज़्यादा, एंड आई ऑल्सो फील कि कभी भी शायद एक मेल पर्सन मेल थेरेपिस्ट के पास शायद ना जाए। Maybe there can be two contradictions, but they do get that female से that emotional empathy that can make them talk. बट काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक पे काफ़ी बातें होनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही मेंस मेंटल हेल्थ की बात आती है, पीपल चेंज द टॉपिक ऑल टुगेदर। टॉपिक अगेन, यस, या मेंटल हेल्थ ही एक टैबू है, और प्रॉब्लम ये रही है कि हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई है। मेंटल हेल्थ को लेकर कभी ये नहीं बोला है कि डॉक्टर पे लेके जाते हैं, तो कभी थेरेपिस्ट पे लेके जाके नहीं हुआ। एंड मुझे इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्कूल्स। आई मीन जो हमारी स्कूल काउंसलर्स होती थी वहीं टीचर्स होती थी। स्कूल में कभी साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया ही नहीं गया। सोचो मेंटल हेल्थ पीरियड होगा स्कूल्स में, वेयर इट इज़ कंपल्सरी टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस। एक 7th क्लास के बच्चे को अगर इमोशनल इंटेलिजेंस बता दी, सिखा दी, रेगुलेटिंग इमोशंस सिखा दिए, हाउ टू हैंडल अ पैनिक अटैक सिखा दिया, तो उनको बड़े होते-होते तक थेरेपी तो नॉर्मलाइज़ हो ना हो, दे विल एबल टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस बेटर। ऐसा नहीं है कि बट आपको लगता है 7th क्लास के स्टूडेंट को भी पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक आता एब्सोल्यूटली बहुत आते हैं और वो मिस हो जाते हैं। आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को लगता है इट वाज़ अस्थमा अटैक, आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को लग रहा है वो एक्टिंग कर रहे हैं। पैनिक अटैक एक 3rd क्लास के बच्चे तक को आ सकता है। हाँ, ये क्या ट्रिगर होता है 3rd क्लास के बच्चे में? उसने तो अपनी इतनी ज़िंदगी नहीं जी होती कि उसको लाइफ में लाइक तो उतना एक्सपीरियंस का लाइक द थिंग इज़, अगर उनके साथ एक्सपीरियंस हो भी रहा होता है, हाउ डू दे कॉम्प्रिहेंड? बिकॉज़ इफ आई इमेजिन माई सेल्फ टू बी लाइक 5 इयर्स ओल्ड, 6 इयर्स ओल्ड, एंड देन अगर कभी डाँट पिट रही है क्या, तो आज समझ में आता है अच्छा कभी पढ़ाई के लिए पिटी होगी या फिर कुछ गलत बोला तो यू रिमेंबर जब एक बच्चा पिट रहा होता है तो वो बहुत सुलग-सुलग के रो रहा होता है, वेयर ही सडनली गेट्स आउट ऑफ ब्रेथ। हाँ, तो मैं क्या लेके रोते हैं जिसको एग्जैक्टली आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड पैनिक अटैक इमोशनल पे नहीं है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ। पैनिक अटैक इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग टू यू बायोलॉजिकली, दैट देयर इज दिस एड्रेनल रश दैट हैपेंड, कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ा, और वही मैं आपको जो पूरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिखा रही थी कि वो किसी को भी आ सकता है, इट्स नॉट अबाउट ट्रिगर। बट द थिंग इज बच्चों को बुलिंग से इज वन प्रॉब्लम थिंग। मेजर प्रॉब्लम जो आज के केस में आ रही है, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, जॉइंट फैमिलीज का कल्चर खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स हम जेनजीज को सोशलाइज करना
आता भी है। In general, we can be fake people who can love to vibe. We can pretend on social. We are very good at pretending. Yes. But in general, हमें अपने कमरे में हमारे फ़ोन के साथ अकेला छोड़ना ही पसंद है। We don't like guests coming in and everything. तो जब उसके घर पे उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, स्कूल में बुलिंग हो रही है, स्कूल में साइकोलॉजिस्ट ही नहीं है, तो 7th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता होगा कि उसे पैनिक अटैक आया है। उसको रोते हुए वो उसकी तरह रोना, सिसक के रोना या आउट ऑफ ब्रेथ ही हुआ होगा। बट मेरा पॉइंट है, अगर वहीं पर ही हम एक हम एक्चुअल स्कूल्स में ये भी तो होता है जो वो ट्रेनिंग देते हैं कि कभी सांस नहीं आई तो देयर इज दिस प्रोसीजर जो पूरा सिखाते हैं। फिजिकल बहुत सारी ट्रेनिंग्स देते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है ठीक है और यस ओके, बट कभी भी पैनिक अटैक्स या फिर मेंटल हेल्थ के बारे में स्कूल्स में भी बात नहीं हुई है। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। ओके, मतलब एक सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को भी पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक हो सकता है। हो सकता है, होता है, वो बात नहीं करते, उनको एग्ज़ैक्टली नहीं पता वो है क्या। आई फ़ील कि स्कूल्स में सिर्फ़ ये नेम से काउंसलर्स की जगह प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट्स होने चाहिए, प्रॉपर मेंटल हेल्थ पीरियड्स होने चाहिए, इस पे हमें करिकुलम बनाना चाहिए। फॉर मी टू एटलीस्ट नो, आई थिंक बच्चे छोड़ो, बड़ों को भी नहीं पता कि उनको पैनिक अटैक आया है। हुँ। वो उसको इन्हेलर्स ले रहे हैं, अस्थमा अटैक में मान रहे हैं, बट यू डोंट नो हाउ योर मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो, देयर आर दी सोमैटिक सिम्टम्स where you get headaches, neck aches, joint pains, and there are a high chances that's basically because of anxiety and depression. Your emotions get stored in your body. Really? Yes, I used to have severe stomach ache right before my maths ka exam. I always used to have that stomach pain. That was anxiety induced pain. I think I also have at times a headache. Like I get That is constant because of maybe because of anxiety. You won't believe people को paralysis हुआ है because of mental health concerns, but वो proper somatic disorders में आता है where body induced pains are because of mental health disorders. So Swasti, off camera also you were discussing manifestation. You were talking about positive affirmations. रात को 3 बार ये बोल के सो. And journaling also. It's very trending these days. हर कोई बोलता है just write it. लिखोगे तो हो जाएगा. And there are actual experiences of people जो बोलते हैं मैंने आज से 4 साल पहले अपनी डायरी के एक पेज पे ये लिखा था इस डेट को और देखो आज वो हो रहा है. So do you think all of this works? Especially the positive affirmations वाला part. 3 बार बोलो ये हो जाएगा. Okay, so I'll first clear the positive affirmations वाला part. द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ कंटेंट या थेरेपिस्ट की ये है कि वो बोल देते हैं आप ये करो दे स्किप टू टेल व्हाई कि भाई मैं 3 बार बोल के क्यों सो व्हाट इज एग्जैक्टली व्हिच इज गोइंग टू हैपन। सो द डिस्टिंक्शन इज द वे यू टॉक टू योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स सपोज आई एम अ वेरी हेल्दी वेट पर्सन, आई एम इनटू द करेक्ट BMI एंड आई एम इनटू द परफेक्ट शेप आई कुड एवर बी, for example. So for You are. then what happened is if I am going to school and there is this guy who's continuously saying me you're fat, you're fat, you're fat, वो मुझे रोज 10 दिन तक I am you're fat बोल रहा है। 11th day I would start seeing myself a fattest person on this earth. उस मिरर में मेरी distorted image suddenly आ जाएगी where I'll start to believe what he's saying. तो अगर आप अपने आप को रोज आई एम डम, आई एम स्टूपिड, इतनी बार होता है हम मेक अ मिस्टेक, कितनी स्टूपिड हूँ मैं, क्या करती रहती हूँ। सबसे ईजी चीज़ है अपने आप को गाली देना या अपने आप के बारे में बुरा बोलना। एंड व्हाट वी डू इज वी आर डूइंग इट ऑन द एवरीडे बेसिस। व्हाट हैपन इज व्हाट वी आर सेइंग टू आवरसेल्फ रियली स्टार्टेड टू हैपन। I was a very productive person and everyone was saying you're very productive. But I thought I'm not good enough. मेरे को तो प्रोडक्टिविटी के लेवल्स तो मेरे कुछ और ही थे। तो मैं अपने आप को रोज बोल के सोती थी तू कितनी लेजी है, तू कितनी लेजी है, जबकि तब मैं काम कर रही थी। आई वॉज स्टिल कॉलिंग माई सेल्फ लेजी। वन डे वॉट रियली हैपेंड इज मैं सच में 10 दिन तक बेड पे ही थी बिकॉज आई रियली स्टार्टेड टू बिलीव आई वॉज लेजी। The point that your therapists might be pushing with positive affirmations or manifestation is that the way you think and the way you talk to yourself is that your body really listens. जो भी आप अपने आप को कह रहे हो तभी बोलते भी है ना नेगेटिव लोगों से दूर रहो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट मत देखो, इज बिकॉज यू आर रियली कंज्यूमिंग एंड देन इट स्टार्टेड टू हैपन। ये जो एक चीज़ नहीं होती नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाती है एंड एवरीथिंग इज बिकॉज या हमारे घर पे मम्मी बोलती थी सरस्वती बैठती है, हाँ सोच समझ के बोलो। what scientifically it means is your body is listening to yourself and it really then transforms in our behavior. So if you're
डेली टॉकिंग टू योरसेल्फ, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस का पॉइंट है, अगर मैं रोज सुबह उठ के, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी वाला चीज़, बट इफ यू इन जनरल, सो मैं अपने क्लाइंट्स को क्या एग्जांपल देती हूँ, दैट व्हेन शी वाज सेइंग आई एम फैट, आई वाज सेइंग कैन वी यूज अ डिफरेंट वर्ड। मैं अपने क्लाइंट से पूछती हूँ, क्या हम फैट के लिए कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं? देन शी इज लाइक, मैम आई एम ओवरवेट। आई वाज लाइक, ओके, व्हाट्स योर BMI, हाउ, व्हाट फैक्ट्स डू यू हैव टू कॉल योरसेल्फ ओवरवेट? एंड देन वी आर एक्चुअली चेंजिंग आवर माइंडसेट इनटू बिलीविंग दैट अच्छा, अगर आप ओवरवेट भी हो, विल टेक द स्टेप्स, बट अपने आप को फैट बुलाने से क्या हो रहा है? सो इट्स जस्ट द वे यू टॉक टू योरसेल्फ, एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस का बस रोल ये है दैट इफ यू आर एक्चुअली टॉकिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, यू माइट परफॉर्म बेटर। Okay. The- I'll start doing that now. Yeah, because when you talk to yourself negatively, you will do things. See, guys, दुनिया में सब लोग आपको गाली देने के लिए बैठे हैं. The last thing you can do is be kinder to yourself. मैं तो जो लोगों ने मुझे बोला भी है ना, what I do is I write that and I write some statements that what proves is, उस बंदे ने मुझे dumb बोला है. What factors does he have to say and prove that I'm dumb? He doesn't know what all things I do behind. एक conversation से आप किसी को dumb कैसे बोल सकते हो? Exactly. बट प्रॉब्लम होती है, लोग औरों की बात को बहुत ज़्यादा महत्व देके, उनकी बात को ऊपर रख के, अपने आप को भी वो नेगेटिव चीज़ लेकर, देन दे गो इनटू द विक्टिम साइकिल। यू रिमेंबर आपने शुरू किया था, लोग बोलते हैं मैं ये चीज़ एंग्जायटी की वजह से नहीं कर पा रहा, डिप्रेशन की वजह से नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये रहती है कि आप बहुत कंफर्टेबली बैठ गए हो, मुझे डिप्रेशन हो गया है एंड अब तो दिस इज़ माय लाइफ। प्रॉब्लम हो थेरेपी कैसे हेल्प करती है इज़ बिकॉज़ हम थेरेपी में रूटीन्स बनाते हैं। थेरेपिस्ट भी जिमिंग पुश करता है। तभी जब हम थेरेपिस्ट आपको कभी नहीं बोलने वाले बेड रॉट करो, दैट्स वेरी कूल। नो, वी आर ऑल्सो क्रिएट अ रूटीन, वी आर ऑल्सो गोइंग टू पुश यू फॉर जिमिंग, वी आर ऑल्सो गोइंग टू पुश यू फॉर वर्क। It's just that you need to create a routine which really helps. So therein the role of positive affirmations and manifestation comes is the positive self-talk. I think हमें affirmations की जगह एक word use करना चाहिए, positive self-talk. Okay. Yeah. Now about journaling. The thing is, अगर ये पानी का ग्लास है और मैं इस पानी के ग्लास में और पानी भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, भरे जा रही हूँ, द वाटर विल ओवरफ्लो। Correct. बट इट विल ओवरफ्लो एंड पूरा एरिया गंदा होगा। हमारे साथ भी क्या होता है, अगर मैं अपने आप की चीज़ों को सप्रेस करे जा रही हूँ, अरे इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वी डोंट रियलाइज़ जो हमारा सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, अगर आपके साथ कुछ हुआ और आप कहीं नहीं बता रहे हो एंड यू आर लाइक मैं तो खुद ही डील करूँगी, एंड इंस्टेड ऑफ डीलिंग आप नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रही हो या आप सो रही हो, तो व्हाट इज हैपनिंग, आपके फ्रस्ट्रेशन लेवल्स बढ़ेंगे, एंगर इश्यूज बढ़ेंगे, एंड देन यू विल बी अ वेरी सेल्फ क्रिटिकल पर्सन। सो वी डोंट रियलाइज जर्नलिंग से क्या होता है, आप अपने माइंड को स्ट्रक्चर करते हो। मैंने अगर वो चीज़ लिख ली ना, तो आई Can it be negative also? अगर मैं अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ, can I write that also? राइट इट इज कमिंग आउट ऑफ योर सिस्टम इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग, राइट इट। अगर कोई थेरेपी के लिए नहीं जा रहा है, मैं उसको बोलूंगी आप प्लीज अपने थॉट्स लिख लो, क्योंकि आपको वो बट वो लिखने से और prominent नहीं आई होता। ऑलवेज सजेस्ट, यू रिमेंबर जब वी मेट में गीत सेज टू राइट एंड देन फ्लश इट, हाँ, एंड देन इट्स बेसिकली टेकिंग आउट ऑफ द सिस्टम। आपको उसको रोज बैठ के पढ़ना नहीं है, चाहे टीयर इट डाउन, बर्न इट, बट तभी लोग बोलते हैं बात करो, बात करो, बात करो। वो बात करना इज बेसिकली जस्ट गेटिंग इट आउट ऑफ योर सिस्टम। एंड प्रॉब्लम मेन के साथ ये होता है बिकॉज दे आर सप्रेसिंग, व्हाई देयर आर मोर एंगर लेवल्स और अग्रेसिव इश्यूज विद गाइज, is because it's maybe the mental health problems they're suppressing are converting into anger. जो हमारे मम्मी पापा हमें बचपन से मारते पीटते आ रहे हैं या इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, इज बिकॉज दे हैवंट हैव सीन दैट वो अलग लेवल में भी बात कर सकते थे, जो आई थिंक हम जेंजी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। सो स्वस्ति, हसल कल्चर के बारे में बात करते हैं। सबको 9 to 5 भी करनी है, फिर साइड हसल भी करनी है, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, अपना काम भी करना है, जिम भी करना है, बॉडी मेंटेन करनी है, 8 hours of sleep is also very important. So there is this unsaid pressure on our generation. 22 की एज में लोग, because influencers, they और अपना एंटरप्रेन्योर बनना है। they earn really well, so they start making money at a very early stage, and they are able to afford things that a normal 9 to 5 guy cannot, or 9 to 5 girl working in a corporate cannot. एंड देयर इज दिस अनसेट प्रेशर कि 22 की एज में इतना अचीव कर लिया, 23 24 की एज में इतना कुछ अचीव कर लिया है। सो व्हाट इज दिस लाइक Yeah, I think affecting, I think, a lot of yeah, people's mental health? We need to I address that. agreed.
एंड आई वुड से कि मैं इस चीज़ की खुद ही एक सबसे बड़ी विक्टिम रही हूँ। आई स्टार्टेड जेन ज़ी एट 22, ठीक है? आई डिड नॉट नो वो इतना ग्रो कर जाएगा एंड आई हैड लाइक 30-35 के फॉलोअर्स। इट स्टार्टेड विद द एम ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग, बट देन आई स्टार्टेड टू सी पीपल वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय माय लाइफ कि स्वस्ति दी आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो? सो आई टूक जॉब फॉर माई सेल्फ, ओके? बट देन आई डिड नॉट ऑल्सो वांटेड टू लीव जेन ज़ी। तो मैं एक पॉइंट पे 9 टू 5 कर रही हूँ, जेन ज़ी भी कर रही हूँ, देन सडनली आई स्टार्टेड पुट ऑन वेट, फिर मैंने जिम भी जॉइन कर लिया है एंड नाउ आई एम मेकिंग दीज़ फैंसी डे इन माय लाइफ वीडियोज़। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, मैंने डे इन माय लाइफ में तो डाल दिया, मैं 9 टू 5 कर रही हूँ, हसल भी कर रही हूँ एंड एवरीथिंग। अब उसका और प्रेशर बढ़ने लगा, दे आर लाइक शो अस मोर एंड आई स्टार्टेड टू बर्न आउट, ओके? देयर वाज़ अ टाइम कि मेरे को सच में जॉब भी नहीं हो रहा था, जेन ज़ी भी नहीं हो रहा था, मैं बेड पे पड़ी रही थी एंड देन यू वोंट बिलीव फॉर 4 मंथ्स आई वाज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग because I did not know the consequences of burnout where physically I was in मेरे followers कम हो रहे हैं, okay? मेरे को जॉब से मैसेजेस आ रहे हैं to come, but physically I was incapable of getting up from my bed because I myself was such blind person in the understand psychology पढ़कर भी the social media gets so much into your mind that यू वांट टू जस्ट शो योर परफेक्ट लाइफ। तो पहले मुझे ये चीज़ डिबंक करनी है कि जो भी आप ये 9 टू 5 प्लस डूइंग ऑल टुगेदर के लोग देख रहे हो, यू डोंट नो व्हाट दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू। हो सकता है वो 3 दिन की रील्स को 1 दिन में डाल रहे हो। यू डोंट हैव टू बिलीव दोज़ रील्स एंड इवन इफ दे आर डूइंग, you have to see how much capability and how much potential you have. आप 9 टू 5 करके खुश हो, आप अपने बिल्स भर पा रहे हो, दैट इज़ परफेक्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब आपने भी पॉइंट बोली, लोगों ने 9 टू 5 को भी इतना वो बना दिया, दैट इज़ अ वेरी अनकूल थिंग। हाँ, दैट 9 टू 5 कर रहे हो तो आप एवरेज हो, आप जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं हो एंड दैट इज़ आई मीन लाइक जॉब अपने आप में लेना कितना मुश्किल है। to pay your checks, then 9 to 5 is what is full. एब्सोल्युटली ओके एंड आई थिंक द कहाँ मैं एक चीज़ बोलूँगी, सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बढ़ रही है, थेरेपी के लिए लोग जा रहे हैं, बट कहाँ सोशल मीडिया ने क्लाइंट्स ही बढ़ा दिए हैं। फोमो, सोशल मीडिया, रील्स, 9 टू 5, ये डे इन माय लाइफ, इन सब की वजह से दर एवरी डे इवन इफ आई एम डूइंग माय बेस्ट, नाइट में मैं वो रील्स देख के यही सोचूँगी दैट आई एम नॉट डूइंग इनफ। नोबडी इज डूइंग इनफ। सो आई वुड रियली लाइक टू थिंक कि आप अपनी रिसोर्सेज देखो। इफ यू हैव अ फैमिली, इफ यू हैव घर पे छत, खाना एंड अ स्टेबल जॉब, इफ यू आर स्टडिंग, आई मीन जॉब भी मैं क्यों बोलूँ, इफ यू आर जस्ट डूइंग व्हाट यू डिसाइडेड, be very grateful for it because social media will always But make we feel that's not enough. At the end I of the know day, we feel that that's not enough. I know and इसमें मेजर रोल सोशल मीडिया का ही है, बट आई रियली वांट टू टेल एवरीवन कि हसल कल्चर के वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, व्हिच इज बर्नआउट, पीपल डोंट नो दैट बर्नआउट इज वेयर योर बॉडी इज रियली इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एट ऑल। तभी हम लोग बोलते हैं ब्रेक स्लो, बट ब्रेक लेते ही गिल्टी लगने लग जाता है, राइट? व्हेन आई टेक अ डे ऑफ, I feel so guilty of having fun. People have forgotten to have fun. Like मेरे को अभी सोचना पड़ता है कि मैं मूवी देखने जाऊं भी या नहीं। वो 2 घंटे में मैं कितना और कुछ कर सकती थी। But I don't realize how many of happy moments I'm missing out on. So as a therapist, I would really like to push people for gratitude of the things that they're having. Sit down. अगर ऐसे सच में लग रहा है you're not doing enough, try writing just 2 things that you want to do and do that. मुझे प्रॉब्लम उस फैक्ट से है कि हम 10 चीज़ों की टू डू लिस्ट बनाते हैं। अब 10 में से आप 3 कर लेते हो, आपकी जो बाकी रह गई हैं, अब वो 3 करने की खुशी नहीं होती। वो जो साथ छूट गए, साथ छूट गए उसका गिल्ट होता है और आपकी बाकी सारी चीज़ें फिर उस गिल्ट में खराब हो जाती हैं। सो आई थिंक स्टार्ट स्लो। इफ यू आर एक्चुअली फीलिंग यू आर नॉट डूइंग इनफ, यू सिट विद इट। व्हाट इज़ इट दैट यू आर नॉट डूइंग? डू वन थिंग, रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड देन मूव फॉरवर्ड। यू नीड टू गो स्लो एंड प्लीज़ ये अनफॉलो कर दो जो भी ये हसल कल्चर की वीडियोज़ बना रहे हैं। Life coaches and motivational speakers have ruined us. I am not going to say all, but there are these really toxic positivity reels. I saw one Instagrammer making a reel gymming करते हुए कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता, जिम जाओ। एंड विच इज लाइक जिमिंग जाओ, बट एटलीस्ट किसी और को डिप्रेशन नहीं होता ये मत बोलो। देर इज ऑलवेज अ बैलेंस दैट नीड्स टू बी क्रिएट। जो लोग भी बहुत हसल कर रहे हैं, प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी गुड, बट डोंट फॉरगेट टू टेक ब्रेक्स and be real, at least be real. So what happened was, even though when I faced depression and burnout, one thing I did was I talk about it.
मैं खुले में ही हर पॉडकास्ट में, मेरे खुद के पॉडकास्ट में ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे बर्नआउट हुआ था, मुझे डिप्रेशन हुआ था। आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, देयर आर दीज़ अमेजिंग पीपल हू केम आउट, जिस वजह से नाउ वी आर एक्चुअली टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि हाँ, गलती की थी। एज़ एन इन्फ्लुएंसर भी हम गलती करते हैं, एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैंने गलती की थी। तो उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, राइट, वेरी वेल पुट। ओके, सो स्वस्ति, एक चीज़ मुझे और पूछनी थी दैट इज़ देयर एनी नंबर ऑफ सेशंस कि इतने टाइम में आपका डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी ठीक हो जाएगी? हुँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली ना हमें एज़ अ थेरेपिस्ट भी बोलते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को इतनी क्लैरिटी दे दें कि ऐसा नहीं होने वाला कि आपके सालों-सालों तक सेशंस चलें। देयर आर वेरी अनएथिकल थेरेपिस्ट्स हू आर टेकिंग सेशंस ऑफ वन क्लाइंट फॉर लाइक 3 इयर्स, 4 इयर्स, दैट इज़ वेरी अनएथिकल। हम अप इट्स वेरी, वेरी, वेरी बैड जो थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट को अपने पे डिपेंडेंट करा देते हैं। वी आर मेरा एम या फिर किसी का भी थेरेपिस्ट का एम यही रहेगा दैट वी टेक मिनिमम ऑफ सेशन। सो व्हाट वी डू इज वी मेंशन इन द फॉर्म दैट वी गिव दैट आपके 8 सेशंस होंगे, आपके मैक्सिमम इतने सेशंस होंगे। बिकॉज अगर आपके 8 सेशंस में आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा, दैट मीन्स मे बी द थेरेपिस्ट एंड यू आर नॉट वर्किंग। आपका फिर थेरेपिस्ट चेंज होगा, बट इतना आपको मेजरली ऐसा नहीं होता कि 10 सेशंस लिए आप हील हो गए, 10 सेशंस लिए आप डिप्रेशन में चले गए। बट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्लाइंट आया, हुँ, मेजरली वो पैनिक अटैक के या फिर कोई एंग्जाइटी अटैक या कोई मेजर इंसिडेंट के बाद आते हैं, बिल्कुल ही सेल्फ हार्म या सुसाइडल आइडिएशन के बाद आते हैं। तो मेजर एम क्या रहता है, एसओएस करना, विच हम जिसे कहते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन में हमारा काम होता है कि हमने उनके पैनिक अटैक्स कम कर दिए, सेल्फ हार्म कर दिया और सुसाइडल आइडिएशन कम कर दी। Then the aim is to teach the client themselves some coping mechanisms that they can do whenever they are feeling depressive and anxious. So क्या होता है, पहले मेरे क्लाइंट्स के सेशंस हो रहे हैं थ्राइस इन अ वीक, फिर उसके हुए वंस इन अ वीक, फिर हमने उसको किया महीने में 2 बार। इतने में हमें समझ आ जाता है कि व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट। द एम इज टू मेक द क्लाइंट इंडिपेंडेंट इनफ फॉर देम टू बी एबल टू handle depression and anxiety themselves. But then there is this thing known as relapse, ओके, where मेरे clients ने beautifully I terminated the client every at the word termination is in itself real थोड़ा सा bad, but termination means ending of the sessions. तो client के साथ end हो गया session, सब कुछ हो गया, and then 2 months back they're like मैम anxiety attack वापस आ गया। That means कोई trigger वापस आ गया। You know there is so some how do you get trigger? Like you experience something similar to what has happened to you? yes, सी कोई 9th क्लास में बुली हुआ था, ठीक है? वो उसको तब तो नहीं पता था क्या हो रहा है, बट देन वो जॉब में गया एंड जो उसको 9th क्लास में बोला गया था, कामचोर है ये वो, अब मान लेते हैं जॉब में उसको किसी बॉस ने बोल दिया। ट्रिगर 9th क्लास की बुलिंग का हुआ जॉब प्लेस में। ओके, मेरी क्लाइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा वापस रिलैप्स जिनके होते थे, उनके साथ होता था कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से किसी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में चले गए हैं। घर पे मेजर क्लाइंट्स के साथ क्या होता है, जिनका चाइल्डहुड अब्यूज़ रही है, कि जब वो हॉस्टल्स में हैं, तब दे आर फाइन। वापस जब छुट्टियों के लिए घर जा रहे हैं, तब बचपन की मेमोरीज़ ट्रिगर हो रही हैं। सो एवरी ट्रिगर सीम्स वेरी डिफरेंट, बट देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपको 9 सेशन में डिप्रेशन, देयर आर दीज़ पोस्टर्स 6 सेशंस एंड एंग्जायटी क्योर्ड। द 15 डेज़ में एंग्जायटी क्योर, दैट्स ऑल क्रैप। ऐसा कुछ नहीं होता। वी आर जस्ट मेकिंग द क्लाइंट इंडिपेंडेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर्स एंड नो हाउ टू हैंडल देम। फॉर एग्जाम्पल हम सेल्फ हार्म के लिए स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि जब अर्ज टू सेल्फ हार्म हो तो हम एक रिस्ट बैंड पहने एंड वी डू दिस। ओके, सो द क्लाइंट इज हार्मिंग, बट इट्स नॉट हार्म, मतलब उसकी मेंटालिटी टू हार्म देमसेल्व्स भी पूरी हो रही है और वो हार्म ऐसे भी नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली physically hurt हो। हाथ पे बर्फ रख लेना, तो वो बर्फ लग रहा है कुछ पेन आपके, हम एक्चुअली ट्रिकिंग द ब्रेन यू नो कि मैं अपने आप को हार्म कर रहा हूँ, बट बर्फ रखने से हार्म भी हो रहा है, वो जो ठंडा अब लग रहा है, बट इट्स ऑल्सो calming your urge to self harm. So these are some techniques and activities which we incorporate in a therapy session. Oh, you do that in the therapy sessions? ब्रीदिंग हम कराते हैं, जैसे देयर इज दिस बॉक्स ब्रीदिंग एंड 5 4 3 2 1 दैट वी डू, व्हिच इज फॉर पैनिक अटैक्स। हम लोग कभी कभी एक्सप्रेसिव आर्ट्स, व्हिच इज आर्ट थ्रू थेरेपी, आर्ट थ्रू म्यूजिक, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेपी दैट आर कमिंग इन। म्यूजिक सेशंस होते हैं, आर्ट सेशंस होते हैं, नैरेटिव थेरेपी होती है, स्टोरी टेलिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ यू राइट अ लेटर टू योर इनर सेल्फ, टेलिंग इनर चाइल्ड, टेलिंग हाउ
हैप्पी यू आर और हाउ प्राउड यू आर। या फिर कभी-कभी सेल्फ असॉल्ट के विक्टिम्स जिनको गिल्ट होता है, दे राइट अ लेटर टू देयर 4-year-old सेल्फ दैट दे वर नॉट एट फॉल्ट। Hmm. सो दीज़ आर सम डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी यूज़। Okay, so there are a lot of YouTube ads I've seen personally where they talk about procrastination. अगर हम कोई वीडियो देख रहे हैं बीच में ऐड आ जाती है उसमें बहुत बार आता है देयर इज वेरी पॉपुलर लेडी जो बोलती है कि आप अगर 12 घंटे से एक काम सोच रहे हो और आप नहीं कर पा रहे तो यानी कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज इक्विवेलेंट टू बीइंग लेजी और हाउ डू यू डिफाइन इट? I'll describe procrastination as something which is You want to do but you're I am. lazy enough to not act on it, like you're just thinking मुझे करना है मुझे ये करना है मुझे तो करना है। मेरा पॉइंट है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन को इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट थ्रू लेजीनेस वी कैन कॉल इट थ्रू परफेक्शन। सो अंडरस्टैंड, मुझे कुछ करना है पर मुझे वो सही करना है। अगर मेरा कोई पीपीटी बनाने का काम है, मुझे वो सही करनी है और आई एम लाइक मेरा अभी माइंडसेट नहीं हो रहा उसे करने का क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अभी करूँगी, तो मैं मन लगा के नहीं करूँगी। सो 90% times procrastination comes from the urge to perfection, because if you want to do something you want to do it right and then you keep on delaying it. So understand, जो lazy है ना उसे पड़े रहने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट अगर किसी को प्रोक्रास्टिनेट करने में गिल्ट हो रहा है तो वो लेजी नहीं है, क्योंकि लेज़ी इंसान को सोना, खाना, पीने में बहुत मज़े आ रहे हैं। बट अ पर्सन हू इज़ ऑल्सो प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड ऑल्सो फीलिंग गिल्टी इज़ समवेयर कमिंग फ्रॉम हिज़ अर्ज टू प्रूव हिमसेल्फ, एंड देन फॉर दैट ही वांट्स टू देन ऑल्सो डू ही और शी वांट्स टू डू एवरीथिंग परफेक्टली, एंड देन शी इज़ लाइक मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो अगर मैं कर ही नहीं पाऊँगी तो मैं करती ही नहीं हूँ। सो देयरइन द एंटायर माइंडसेट चेंजेस। अगर हम किसी प्रोक्रास्टिनेशन को सिर्फ ये बोले, जैसे मैंने आपको 10 चेकलिस्ट वाला चीज़ ही बताया था, अगर मैं सुबह उठ के ये सोच रही हूँ कि मुझे आज 10 के 10 टारगेट कंप्लीट करने हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी और अगले दिन मुझे ये लगेगा जब मैं कल कर ही नहीं पाई थी तो मुझे अब करना ही क्यों है? अगेन परफेक्शनिज़्म। पर अगर मैं ये सोच के उठूँ जितना करूँ काफ़ी है, देन वी कैन रिड्यूस प्रोक्रास्टिनेशन अ लॉट। यू रिमेंबर आपने एड्स की बात करी, सो देयर वाज दिस 5 स्टार का एड, कभी कुछ ना करके भी देखो। अच्छा। सो आई रियली लव्ड इट बिकॉज़ समटाइम्स यू डोंट हैव टू, अगेन यू डोंट हैव टू पुट दैट 99% ऑफ एफर्ट्स। आपको अगर कभी कोई चीज़ करनी है, यू अंडरस्टैंड उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वो कितने टाइम, ऑल्सो आई फील इसमें द स्मार्ट गोल्स की एक टेक्नीक होती है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव योरसेल्फ अ टाइम, a measurable goal when you will complete it. Don't just vaguely say कि मुझे ये चीज़ 2 दिन में करनी है। You won't be able to do it. If I'm like मुझे ये चीज़ 2 घंटे में करनी है, इतनी करनी है, अगर आप measurable, achievable, time bound goals बनाओगे, जिसको हम स्मार्ट कहते हैं, स्पेसिफिक ये चीज़ करनी है, measurable that you should able to measure मैंने कितना कर लिया, कितना बचा है, it should be achievable। कहना कि मैं एज़ अ थेरेपिस्ट मैक्सिमम मैं 3 से 4 क्लाइंट्स ले सकती हूँ, उसके बाद मेरी बॉडी थक जाएगी। रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग आप दिन में कितने पॉडकास्ट लेने चाहिए। अगर आज आप ये टारगेट बनाते हैं, अब आज 4 पॉडकास्ट करोगे, आपकी टीम का बर्नआउट होता, आपका बर्नआउट होता, गेस्ट तो बहुत एनर्जी से आते हैं, बट मुझे वो एनर्जी आपसे नहीं मिलती। तो इट शुड बी वेरी स्मार्ट गोल्स। हम उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि प्रोक्रास्टिनेशन लेज़ीनेस से नहीं, परफेक्शनिज़्म से ज़्यादा आता है। We want to do things right and we wait for the right moment and the right moment never comes. Okay. All right. So basically people who are perfectionist they procrastinate. अब हम इसको विक्टर उसे कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ इसलिए मैं प्रोक्रास्टिनेट यहाँ से कर सकती हूँ, बट यू नीड टू मेक वेरी टाइम बाउंड गोल कि जैसे सी हाउ ब्यूटिफुली योर डे वुड हैव कार्व्ड। यू न्यू 2 people are coming for the podcast, you had the script, you knew what to do, what not to do, you knew what to wear, what not to wear. Imagine how messy you would have been कि मैं यहाँ बैठी होती हूँ और आप कपड़े चेंज करने जाते हो और आपको पता ही नहीं होता आपके कपड़े कहाँ हैं। You planned it, right? Yeah. So it needs to be, we really need to give that bound and time and specific things to do. क्या होता है मैक्सिमम टाइम मैं काम लेके बैठी हूँ, क्यों बोलते हैं कि स्टडी टेबल पे ही काम करना चाहिए? एक तो जो लोग बेड पे काम करते हैं, इट नेवर वर्क्स आउट। अंडरस्टैंड, आपकी जो साइकोलॉजी है विद बेड इज रिलेटेड टू कंफर्ट। Okay. आप बेड पे सोते हो, या तो आप बेड पे काम कर सकते हो या सो सकते हो। जो लोग बेड पे अच्छे से काम कर रहे हैं, आई कैन गारंटी वो नींद नहीं ले पाते होंगे, क्योंकि वो बेड पे काम अच्छे से कर पा रहे हैं बट उनको रात में वहाँ नींद नहीं आ रही है, क्योंकि अब वो बेड कंफर्ट से नहीं जुड़ा है।
अपोवेट काम से जुड़ गया है। तो इसलिए हम स्लीप हाइजीन करते हैं कि क्यों जिनको नींद नहीं आती, हम उनको पूरा स्लीप रूटीन बताते हैं कि सेंटेड कैंडल भी जला लो, डार्क डिम लाइट्स भी रख लो, प्रॉपर 1 घंटे पहले डिजिटल कुछ मत यूज़ करो कि यार सोने जा रहे हो ना तो प्रिविलेज लो। लोगों ने स्लीपिंग को प्रिविलेज से ज़्यादा एक लग्ज़री बना लिया। व्हेन माय फ्रेंड से ना तेरे को पता है कल रात मैं फाइनली 6 घंटे सोया, मैंने कहा वाज़न्ट इट लाइक अ बेसिक थिंग? If I sleep for 6 hours continuously, it's like an achievement for me that I've slept for that hour. बिकॉज़ दैट इज़ द बेयर मिनिमम यू शुड डू। जो जो अभी 5 घंटे सो रहे हैं प्लीज़ 6 टू 8 आवर्स सो, एंड जो 12 घंटे सो रहे हैं वो भी गलत है। पीपल हू आर ओवर स्लीपिंग, दैट्स आल्सो रॉन्ग बिकॉज़ देन यू विल फील मोर लेथार्जिक। बेसिकली आपकी बॉडी इज़ लाइक ये सोने में मज़ा आ रहा है भाई, यही करो फिर पूरे दिन। सो यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट गोल्स। तो प्लीज़ एक तो आप टेबल पे रखो। अब क्या होता है मेरे साथ, मैं पीपीटी का काम करने बैठी, आई एम लाइक कॉफ़ी नहीं है, कॉफ़ी लेके आते हैं। तो मैं कॉफ़ी लेने गई, आई एम लाइक ये चीज़ भूल गई, वो चीज़ भूल गई। जब तक मैंने टेबल सेट करी मेरा मन काम करने का खत्म ही हो गया। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू मेक द प्लान, मेक द स्ट्रक्चर, एंड आई विल जस्ट से स्मॉल गोल्स लो, अचीव करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। Okay, so our next segment is going to be a rapid fire segment. I'll be asking you quick questions. You have to give me very quirky and spicy answers to that. ओके, Okay, one mental health myth you wish it would disappear forever. that it's not in your head, that depression is not real. This is the two statements that maximum people say, that you're attention seeking, it's not real, it's in your head. It's not in our head, it's very biological, it's very neurological, it's very physical. So it is something which is very scientific and it is not attention seeking. Okay. Quick tip to calm anxiety in under 60 seconds. I don't usually like to give such quick fixes because quick fixes doesn't work. But if somebody having a panic attack, they can always try keeping an ice in their hand. Go from that a lot of public spaces se thoda dur. They can try two things: box breathing and 5, 4, 3, 2, 1, in which we basically it's a grounding technique. We come back to reality. We basically name 5 things that we can see, 4 things that we can touch, 3 things that we can hear, 2 things that we can smell, and 1 thing that you can taste. So इससे आप reality पे आ जाते हो and your belief that you're out of breath and you're dying gets replaces. Okay. If you could prescribe one habit to maintain mental health, what would that be? Having a routine. It's okay to wake up late, but you should have a plan in your mind that आप किस time gym जाने जा रहे हो, किस time काम करोगे, किस time सोना है. Routine really helps. Otherwise, without routine, without a structure of your day, you'll always feel anxious. And red flag in relationships that people usually ignore that leads to trauma or disagreement. This red flags and green flags is the most bad term for Gen Zs, and हम Gen Zs ने ही बना दिए red flags, green flags. We need to Why understand is it bad? because red flags, यार हाँ जो भी बोल रहे हैं ना that they are चलता फिरता red, green flags are maybe the biggest red flags because all of us have both reds and greens. ठीक है, कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं हो सकता. फॉर रिलेशनशिप आई शुड टेक एन अकाउंटेबिलिटी कि देखो मेरे ये फ्लॉज है एंड आई एम रेडी टू वर्क. So the person who's ready to accept that they have red flags, but they're ready to work on it, is a green flag. Oh, that's fair. Most common mental health issues students bring to therapy. Social media, the fear of missing out, real addiction, and then parents ka pressure. But majorly, सबसे ज़्यादा social media is something that is causing major anxiety and depression. And can a bad marriage or a relationship be fixed through therapy? Therapy doesn't fix anything, but I feel when somebody take couple therapy, what happens is that वो बहुत सारे ऐसे what happens is when two people are fighting, they're only saying things, nobody is listening to each other. So through therapy we can just understand कि maybe हम कहाँ गलत थे, partner कहाँ गलत था, and they can work better. But yes, if there is something which involves infidelity, domestic violence, there has to be a lot of reasoning that why are you exactly in that relationship. But do we think you should walk out if there's infidelity or domestic violence? I think those are extremes. Yeah. Those are But then there are also, yeah, for a woman, I cannot be like a proper feminism and say, if you're in a domestic relationship, leave it. There may be somebody who's not financially independent. Where would I tell them to go? There are a lot of cultural things that are also come into the picture. If she goes where?
where exactly am I asking her to go? She can't go back to her Maika, for example, if there is something in, happening in her sasaral. So there has to be a lot of social and cultural constructs that I also has to see. I cannot be a therapist saying, walk away, walk away. I also have to understand the background that she's coming up with. Okay, all right. Thank you so much, Swasti. It was wonderful having you here for the Same podcast. here. Thank you I so much. enjoyed it. It was And it is amazing that you're bringing such different conversations. You're picking up the right topics. I think these are the real issues that we really have we need to address. conversations about, because I see a podcast on such random things, but you're bringing the right professionals with right education, qualification. And I think lastly, I just want to say is, before you book a session with any therapist, please check their credibility. Do they have masters in psychology? Because हर कोई अपने आप को therapist claim कर रहा है, but they might not have a right degree. If you don't think therapist is working for you, change it. It's absolutely okay. And therapy might not work for anyone, but trying is something which is important. Okay, all right. That's for the audience. So if you like this episode, make sure that you like, share, and subscribe to the next one. Stay tuned.